Good morning, everyone. How are you all? Fine, ma'am. How are you? Okay, let's start with the class. I am also fine. Let us start with the class. मुझसे पहले एक बार क्लास दिखा दो, क्लास शुरू हो उससे पहले. Yes. प्लीज क्लास दिखा दो, क्लास स्टार्ट हो उससे पहले एक बार. Yes, ma'am. What happened? मैम आप क्या आप क्लासरूम हमें दिखा क्लास देते दिखाओगे? Classroom ही है. It is classroom only. It is Okay. class only. Well, it is not your class, of course. Who is missing the class? I think all, right? मैम आए. हम तो कल आए थे, बाकी सब तो आते भी नहीं है. Sorry? यस्टरडे तो हम कितने दिनों बाद स्कूल आए थे, मैं और नीरव, क्योंकि हमारा सेरेमनी थी. बाकी तो हम टाइम ही नहीं मिलता स्कूल पे जाएगा. देखते कब स्टार्ट होती है स्कूल. Yes, you are right. So yesterday you were there in the school. I saw you guys, Neerav and Rushi and other girls from 9. Students who were ranked in various competitions. Ma'am, So I saw sorry, I am not able yesterday because my flight of yesterday to come in morning. Okay. That's fine. You can collect your certificates while you come to collect your books or submit it, right? So later on when you come to school, you can collect it. The certificate would be available from respective housemasters. You can collect it. Okay, so everyone, shall we start? Yes, ma'am. Let me take attendance first. First of all, I'll take attendance. Okay, attendance done. Now, we need to start from the point where we left, right? In last class, what we did? What was our last Colloidal point, solution. everyone? Sorry? Colloidal solution. Okay, Colloidal colloidal solution. Okay, aren't we done with separating mixtures, separating various mixtures, that blue ink and No, we how have to we start separate? from there. Okay, in 9th B it might be done, no worries. We will start from that point. So after colloidal and colloidal solutions and their examples, the next point in this chapter is how to separate those dye components from the ink. So for that we use the method of evaporation, and you are quite familiar with this word now, that what is evaporation. So let us start from that point, evaporation. And for that I need to screen share. I hope screen is visible to all of you. Yes, ma'am, And if you visible. guys have any... Yes, okay. If you guys find any query in between, you can just refer it, right? You can refer your comments to comment box, send it in comment box. And I'm putting you guys on lecture mode. So in between, if any query arises, send it in comment, because your mic would be off at that time. Now, here is your page of textbook, and I am just
screen sharing the page. Priyanshu, you can also refer it from textbook, right? Okay, here the next point after this table 2.1, common examples of colloids. You can see this point, separating the components of mixture. So how would you separate this component of mixture? And for that, this paragraph is given here. First of all, we will see that and then I'll explain. So we have learned that most of the natural substances are not chemically pure. That we learnt in the starting of chapter 1, right? And in chapter 2 also we had the concept of pure substances, and what we can say is that pure substance, which we call matter, and these two substances when mixes together they form mixtures. So basically, if you consider any particular substance that is not chemically pure, right? Well, it is natural substance, so you will think that it is pure, but actually it is mixture of various components. So chemically, if we consider that substance, naturally it is pure, but chemically not. So different methods of separation are used to get individual components from a mixture. So this separation makes it possible to study and use the individual components of mixture. Okay? So individual components, like suppose we have mixed ink, right, by mixing various dye components. So what does it make? It makes a mixture of those dye components, various dye components. Now if you want to separate that dye component from water, then we need to just separate those components. And for that various methods are used that we are going to see. Various methods are there, not only evaporation. So heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving and filtration, right? For example, at home, your mother, she removes that stones from grains or pulses, right? So that is called hand picking, right? Simply we can just pick that substances from our hand and separate it. So that is hand picking. Sieving, right, at home, by using that sieve, right, they are just sieving the floor. We can just sift the floor, and filtration method is used if any liquid substance is there. For powdery substance we use sieving to separate unnecessary substance from floor, right? And filtration method is used in our daily life, like we separate tea from milk, right, by filtration, so that we use it in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used, right? So that special technique is used when we cannot separate those mixtures by hand picking or sieving or filtration. For example, if we have milk, right? If we have milk, then we want to separate cream and milk, then what do? We use centrifugation method. If we want to separate butter from buttermilk, then also we use centrifugation method, right? We use a hand blender or mixture to separate cream or butter from buttermilk or milk. Okay? Sometimes these techniques, they are used when filtration or hand picking or sieving method is not useful. So there are various methods, and one by one we are going to discuss each method. So first method is how can we obtain colored components from blue-black ink. Suppose we have blue or black colored ink, right, that we use in our ballpoint pens. So that ink is having its dye component which is dissolved in water, okay? So that can be separated by a method, right? For that we need to fill half a beaker with water and put a watch glass on the mouth of beaker. Now we need to put few drops of ink on watch glass, okay? And now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly. Actually ink is not mixed with water. Here please mind this. Ink water के साथ mixed नहीं है, okay? सिंपली बीकर एक पानी से भरा हुआ है, उसके ऊपर हमने एक वॉच ग्लास रखा है और फिर वॉच ग्लास में हमने क्या किया है, इंक के कुछ ड्रॉप्स डाले हुए हैं.
ठीक है, पानी के अंदर हमने इंक को मिक्स नहीं किया हुआ है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्टली इंक को हीट कर रहे हैं, सीधा हम फ्लेम पर इंक को नहीं रख रहे, पहले पानी गर्म कर रहे हैं और पानी से वो हीट किन को मिलेगी, इंक को मिलेगी। ओके, वी कैन नॉट heat that ink directly, so we are just putting that beaker filled with water on the flame, providing it with heat, and that heat is provided to watch glass then, which will be available to ink. Okay, so we do not want to heat the ink directly. You will see that evaporation is taking place from the watch glass. इवेंचुअली क्या होगा, वॉच ग्लास में जो इंक है वो भी इवेपरेट होगी, पर इंक सीधा इवेपरेट नहीं होगी, इंक के अंदर जो पानी का जो भी हिस्सा होगा वो इवेपरेट होकर बाकी बचेगा वो क्या होगा, हमारा कंपोनेंट होगा। ओके, so continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. अब यहाँ पे होगा क्या, जब भी इसको हीट किया जाएगा, ठीक है, तो कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो आपको तब तक ये हीट प्रोवाइड करनी है वॉच ग्लास को जब तक ये कलर चेंज बंद ना हो जाए, मतलब कि ये कलर चेंज होते होते एक परमानेंट कलर आ जाए, उसके बाद कोई कलर चेंज या कोई चेंज नहीं हो रहा, देन यू कैन स्टॉप हीटिंग। ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। नाउ हियर यू कैन सी दैट अरेंजमेंट विच इज गिवन हियर, ठीक है, बंसन बर्नर के थ्रू बीकर को हीट किया जा रहा है और वो हीट फाइनली वॉच ग्लास को मिल रही है जिसके अंदर क्या है, इंक के कुछ ड्रॉप्स है। ठीक है, तो ये सीधा हीट नहीं करना है, पहले पानी गर्म करके उसकी हीट यहाँ इंक को प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है कि भाई आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन करने को मिला। सो यू नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। वॉच ग्लास से क्या इवेपोरेट हुआ है, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन वॉच ग्लास एंड व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इज इंक सिंगल सब्सटेंस or is it a mixture? So we find that ink is a mixture of dye in water, right? So अगर वो dye water में mixture है और हमने उसको heat किया तो आप सोचिए क्या evaporate हुआ होगा यहाँ पे, think about it, पानी है ना, of course पानी evaporate होगा। ठीक है, so we can separate this volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation. Here volatile component means water, वोलेटाइल मतलब कैसा कि इवेपोरेट हो सके ऐसा सब्सटेंस, तो पानी को गर्म करोगे क्या होगा, वो वोलेटाइल है, उड़ जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस मींस आवर सॉल्वेंट, आवर वाटर, फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, अगर वाटर में हमने डाई कंपोनेंट ऐड किया है तो सॉल्यूट क्या हुआ यहाँ पे, इंक, वाटर के अंदर इंक डाली है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, इंक सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर। ठीक है, पानी इंक हमारे पास है, उसके अंदर कुछ हिस्से में पानी है कुछ हिस्से में इंक है, तो वाटर सॉल्वेंट है और उसके अंदर डाली हुई इंक क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था ना हमने। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट इंक और से डाई कंपोनेंट फ्रॉम द गिवन इंक। क्योंकि इंक के अंदर पानी होता है तो पानी इवेपोरेट होने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा डाई कंपोनेंट है। ठीक है, so this is how you can separate non-volatile components from volatile ones. For example, salt और पानी का मिक्सचर है तो उसमें पानी volatile है, salt non-volatile है, तो उसको भी आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो। दूसरा क्या है, शुगर एंड वाटर है, उनका मिक्सचर है। सपोज आपने शुगर सिरप है उसको पानी में मिक्स किया है, तो फिर से उसको हीट करोगे तो पानी उड़ जाएगा, बाकी बचेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ शुगर। तो जो भी पानी के साथ सॉल्यूबल है ऐसे सब्सटेंसेस, उनके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे एग्जाम्पल कोई भी हो, आपको पता है कि ये पानी में घुल सकता है, ठीक है, और उनके लिए पूछा जाए कि विच मेथड कैन बी यूज्ड हियर टू सेपरेट दीज टू, वाटर एंड दिस और दैट। सिंपली जहां वाटर है वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, इवेपोरेशन। सो व्हाट यू वुड राइट दैट वी कैन यूज इवेपोरेशन टेक्निक टू सेपरेट वाटर एंड दिस और दैट सब्सटेंस, जो भी दिया है। अंडरस्टूड एवरीवन? हियर आपको कोई भी एग्जाम्पल दे करके पूछे यहाँ पे वाटर के साथ ये मिक्स किया गया है तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे, सिंपली यू कैन राइट वाटर इज वॉलेटाइल एंड इट कैन इवेपोरेट, सो वी कैन यूज इवेपोरेशन टेक्निक। गॉट इट एवरीवन? Yes or no? Okay. And others also, you should reply when you get the point, okay? Be communicative.
नाउ सेकेंड पॉइंट इज हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. तो ये तो मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत से ही बताया कि क्रीम और मिल्क अलग करने हैं. ठीक है, तो भैया तो हमें उसका टेम्परेचर चेंज करना है, पर अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं. तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करेंगे. जैसे डेयरी में क्या करते हैं, डेयरी में मिल्क पहुंचता है तो क्या करते हैं, मिल्क और क्रीम दोनों सेपरेट कर लेते हैं. फिर क्रीम से दूसरी जो डेयरी प्रोडक्ट है, घी है, बटर है, वो सारी चीजें बनती है. और मिल्क है उसका सेपरेट सेलिंग होता है या कर्ड बनता है उससे, है ना. तो डेयरी प्रोडक्ट है उनमें ये चीज की जाती है. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करके मिल्क और क्रीम अलग किए जाते हैं. कुछ फुल क्रीम मिल्क होते हैं, कुछ टोन्ड मिल्क होते हैं, कुछ डबल टोन्ड होते हैं. तो अलग अलग वेराइटीज ऑफ मिल्क अवेलेबल है ना. जैसे अमूल में आप पैक खरीदते हो तो अमूल ताजा अवेलेबल है, अमूल गोल्ड अवेलेबल है. तो उन सभी की फैट वैल्यूज अलग अलग है ना. ठीक है, तो मिल्क जो पॉलीपैक्स में या टेट्रापैक्स में अवेलेबल होते हैं तो ये सारे उनमें फैट है. मिल्क के अंदर जो क्रीम का अमाउंट है वो अलग अलग है. तो ये अलग अलग कैसे सेट करते हैं, तो कुछ मिल्क में से क्रीम का कुछ अमाउंट अलग कर लेते हैं. ठीक है, so that is nothing but separation of cream from milk which is done at the dairy level. Dairy में ही ये कर दिया जाता है. So this variety of milk contains different amount of fat and that is done by using centrifugation method. Okay. Next you are given one activity to understand this centrifugation method. So take some full cream milk in a test tube and centrifuge it by using centrifugation machine for 2 minutes. If centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using milk churner, मतलब कि blender जो किचन में available है. ठीक है. And if you have milk dairy nearby, then visit it and ask how they separate cream from milk. तो उनके पास एक मशीन सा होता है, ऊपर से वो मिल्क डालते हैं और नीचे एक तरफ से मिल्क और एक तरफ से क्रीम जो है वो सेपरेट हो जाता है. ठीक है, तो डेयरी में ये मशीन अवेलेबल है जिनसे वो सेंट्रीफ्यूज करके मिल्क और क्रीम अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है. हाउ दे मेक द चीज फ्रॉम मिल्क. चीज और मिल्क है वो मिल्क से चीज कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो स्टूडेंट्स एक रेनेट नाम का सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस. ठीक है, तो वो जैसे ही मिल्क में ऐड करते हैं तो मिल्क है उसमें से सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट होने लगता है. ठीक है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है. तो इस तरह से चीज या पनीर दोनों अलग अलग चीजें हैं. हालांकि चीज और पनीर दोनों ही अलग चीजें हैं, पर है मिल्क की सॉलिड फैट जिसमें प्रोटीन अवेलेबल होता है. ठीक है, तो इन दोनों की बनाने की मेथड अलग है, पर हाँ मिल्क से जो सॉलिड प्रोटीन्स होते हैं उनको अलग करते हैं. तो चीज बनाते टाइम क्या करते हैं कि भाई उसमें रेनेट सब्सटेंस ऐड किया जाता है तो उनसे चीज मिल्क से सेपरेट होने लगता है. हालांकि आगे और प्रोसेस किया जाता है, उसको बहुत टाइम तक स्टोर किया जाता है और चीज में भी अलग अलग वेराइटीज होती है. ठीक है, वो मेरे से ज्यादा तो आपको पता होगा, ऑल पिज्जा लवर्स देयर, राइट. So that cheese is separated from milk in that way. Paneer, for that also acidic substance is added into milk. We know that milk is a basic substance, right? So whenever they add any acidic substance like lemon juice or vinegar, right? Both are acidic substance. So जैसे ही इसको add करेंगे तो milk से जो solid substance separate होगा, that would be paneer. Okay? So that can be made by just using centrifugation method, or there's adding a substance which separates the solid substances from milk. So now we can say that milk is not true solutions because we can separate them by using acidic substance or by storing them into fridge. तो ये true solutions तो नहीं गिन सकते. मिल्क किस में आता है, colloid substance में. ठीक है, okay. Now question is here regarding the centrifugation method, that what do you observe on churning the milk. मिल्क के अंदर आप ब्लेंडर घुमाओगे बहुत देर तक तो क्या होगा, मिल्क की जो क्रीम है वो सेंटर में इकट्ठा हो जाएगी क्योंकि वो कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज हो रहा है मिल्क. तो सेंटर में मलाई जो है दूध की क्रीम जो है वो सेपरेट होकर के ऊपर आ जाएगी, है ना. तो रीजन क्या है, मिल्क हैवी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो नीचे की ओर रहेगा. और क्रीम जो है फैट सब्सटेंस है वो लाइट होते हैं वेट में, तो वो ऊपर सेंट्रीफ्यूज होकर के ऊपर इकट्ठा होंगे. So that is the reason, because of density differences, milk remains at the bottom and that cream comes on the surface. Okay? Now explain how the separation of cream from milk takes place. Milk से cream का separation कैसे किया जाता है. तो simply centrifugation method use की जाती है या फिर temperature change करके भी किया जा सकता है. Okay?
So sometimes the solid particles in the liquids are very small and pass through filter paper, and for such particle filtration technique is not useful. तो भाई दूध से क्रीम को अलग हम नहीं कर सकते क्योंकि वो अच्छे से मिक्स्ड है। तो आप छलनी से छानोगे तो क्रीम के साथ मिल्क दोनों ही चला आएगा, तो ऐसे तो नहीं अलग कर सकते, तो इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो जिनका डेंसिटी डिफरेंस होने के बावजूद मिक्स्ड है, ऐसे मिक्सचर्स को अलग करने के लिए वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। For example, if we want to separate butter from buttermilk, then also we use centrifugation method. Okay, so this is how we can separate these mixtures which are having two different constituents which are having density differences. Okay, the principle is that the denser particles are forced to the bottom. मतलब कि milk heavy है, denser है, तो वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, and lighter particles stay at the top when spun rapidly. Now, application of this centrifugation methods in real life are given here, and that can be asked in exam also. So please find this important and you can highlight this application. Used in diagnostic laboratories for blood and urine test. अभी कोविड एरा में मोस्टली सबने ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाए होंगे, है ना? तो आपने देखा होगा कि आप जब लैब में जाते हो तो वहां पे आपका ब्लड सैंपल लेकर के एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करते हैं, और वो टेस्ट ट्यूब वो एक मशीन में रखते हैं, फिर वो बंद करते हैं तो अंदर वो घूमती रहती है टेस्ट ट्यूब। तो वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन है। जितनी जल्दी से घूमेगा ब्लड, तो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, वो सब सेपरेट होकर के उनके डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से वो अलग हो जाते हैं। जैसे मिल्क से क्रीम अलग होता है, वैसे ही ब्लड से वो कंपोनेंट सेपरेट होंगे। ठीक है, तो इससे वो डायग्नोज कर सकते हैं कि भाई सामने वाले के ब्लड में कितने रेड ब्लड सेल्स है, कितने व्हाइट ब्लड सेल्स है। हालांकि वो काम मशीन करती है, ठीक है, तो वो उनसे टेस्ट डायग्नोज कर सकते हैं कि भाई यूरिन सैंपल में या ब्लड सैंपल में कोई कमी है या कोई भी डिजीज है, तो दे कैन फाइंड आउट। सो इन लैबोरेटरीज they are using this centrifugation method, and they are also used in dairy and home to separate butter from cream, and used in washing machines also. washing machine में भी तो यही centrifugation method होती है कि कपड़े यूं ही स्पीडली घूमते रहेंगे मशीन के अंदर, तो मैल जो है वो अलग हो जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, so that dirt would come on the top and we can separate that dirt from the clothes. So in washing machine, in laboratories and in home or dairies, the centrifugation method is used to separate various constituents. Okay? Okay, so we learned about two different methods. First is evaporation and second is centrifugation. Please remember these techniques. Okay? Now third technique we are going to learn. Here we are going to separate two immiscible liquids. ठीक है, इसे सेपरेशन टेक्निक बोलते हैं, ये थर्ड जो हम लर्न करने वाले। ठीक है, और ये कैसे मिक्सचर्स के लिए यूज होती है? टू इमिसिबल। मिसिबल मीन्स जो मिक्स हो जाए। ऊपर हमने जो देखे मिल्क और क्रीम वो अच्छे से मिक्स्ड थे, ठीक है, तो वो मिसिबल लिक्विड के लिए थी। पर अगर इमिसिबल लिक्विड है कि वो दोनों मिक्स नहीं हो रहे और फिर भी इस तरह से है एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाए हुए कि हम उसे ऐसे ही अलग नहीं कर सकते, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू भी नहीं, इवेपोरेशन के थ्रू भी नहीं, तो क्या करेंगे? So for that we need to use this separation technique. Okay, so that we are going to learn. So activity 2.6 explains how to separate two immiscible liquids. First point is, let us try to separate kerosene oil from water. Suppose पानी और केरोसिन मिक्स हो गए, अब आप इसको इवेपोरेट तो कर नहीं सकते, हीट करने जाओगे तो केरोसिन बर्न हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते हम, है ना? दूसरी मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन, वो भी यहाँ काम नहीं आएगी। आप ब्लेंडर घुमाओगे या किसी तरह से उसको स्पन करोगे, नो, केरोसिन और पानी अलग नहीं हो सकते, है ना? तो जब भी ऐसे केरोसिन ऑयल या दूसरा कोई ऑयल पानी के साथ मिक्स है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज सेपरेशन मेथड, जिसका अपरेटस आपको यहाँ पे दिया गया है कि भाई सेपरेटिंग फनेल के अंदर ये तो मिक्सचर जो है हमारा, उसको हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर थोड़ी देर रखेंगे तो दोनों ही मिक्सचर अलग अलग लेयर बना लेंगे। ठीक है, पानी का लेयर और तेल का लेयर दोनों अलग अलग हो जाएगा। हमें पता है कि पानी और तेल मिक्स में होते हैं तो पानी नीचे बैठ जाएगा, डेंसिटी ज्यादा है तो, और ऑयल ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बहुत इजीली, ये सेपरेटिंग फनेल ना हो फिर भी डिकेंटेशन यूज कर सकते हैं कि आप पहले हल्के से आप उस कंटेनर को
डिकेंट आप इंक्लाइन करेंगे तो पहले जो भी ऊपर के लेयर में होगा वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप सेपरेट कर सकते हो। पर साइंटिफिकली इसको कैसे अलग किया जाता है, फॉर दैट सेपरेटिंग फनेल इज यूज्ड। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनेल में क्या होगा, वहां उल्टा होगा, वहां पहले जो हैवी होगा वो सब्सटेंस नीचे से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही स्टॉप कॉक है उसको ओपन किया, नीचे स्टॉप कॉक है वो लिक्विड को रोके हुए है, पर जैसे ही स्टॉप कॉक ओपन करेंगे तो क्या होगा, पानी है सबसे पहले बाहर आएगा और फनेल के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो वी कैन यूज दिस सेपरेशन टेक्निक फॉर द मिक्सचर्स विच आर इमिसिबल। ठीक है, वो कभी मिक्स नहीं हो सकते, पानी और तेल कभी भी कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकते। So applications of separation technique is to separate mixture of oil and water। कोई भी oily substance और water mixed है तो उनको अलग करने के लिए हम ये use कर सकते हैं। In the extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom। ओके, आयन का जो आयन को मेल्ट करके आयन की ओर जो है बेसिक जो खनिज तत्व हमें मिलते हैं और उसके कोर से, तो वहां से आयरन एक कंपाउंड के फॉर्म में होता है, जैसे फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, तो दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ओर्स, डिफरेंट ओर्स। सो टू सेपरेट स्पेसिफिकली आयरन मेटल ओनली फ्रॉम ओर, दिस आयरन इज मेल्टेड फर्स्ट एंड स्लैग इज रिमूव्ड। स्लैग क्या है, एक डर्ट है, एक इम्प्योरिटी है, तो उसको अलग निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर यही मेथड यूज की जाती है, सेपरेटिंग फनेल टाइप। ठीक है, ताकि स्लैग जो है हल्का होता है वजन में, तो वो तेल की तरह, पानी में जैसे तेल ऊपर लेयर बनाता है वैसे ऊपर वो फ्लोट कर रहा है, तो स्लैग को रिमूव कर दिया जाता है और नीचे बाकी बचा है वो सिर्फ मोल्टन आयरन मेटल है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट दिस स्लैग एंड मेल्टेड आयरन। ओके, so principle of this immiscible liquid to separate out in layers depending on their density। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल क्या काम कर रहा है, तो डेंसिटी का प्रिंसिपल काम कर रहा है। ठीक है, कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। और अगर हम सेपरेटिंग फनेल यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हैवी है उसको हम अलग कर लेंगे। तो मतलब लेयर वाइज वी आर सेपरेटिंग दिस सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी डिफरेंसेस। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes or no? Okay, so here we learned three methods: separation technique, centrifugation, and third one, evaporation. Okay, we learned three methods: evaporation, centrifugation, and what was the last one? Separation technique. Okay, these three methods are there to separate various liquids. Now students, please go through these three points, these three techniques and their applications. If you find any query in these three, then please ask. 2.3.1, 2 and 3, all 3 points, please go through it. इसमें कहीं भी कोई query है, कोई line समझ में नहीं आ रही, then please ask.
Yes, Swaraj, because I'm not speaking anything, that's why. Tell me if you have any queries. Okay, Nirav asks, what is volatile component? Volatile components means which can easily evaporate. Okay, if you keep water in outside environment, what happens? That water evaporates, right? So we can say that it is volatile. And some substances are highly volatile. If we consider such highly volatile substance, that is as an example, you can take petrol, kerosene. If you keep those substances open in environment, what happens? After some time it will evaporate, okay? You will not find that substance in that container in which you have kept it open, okay? So such substances are called highly volatile, okay? Water is also volatile. If you keep it in open area, it will just evaporate, okay? And non-volatile substances which do not evaporate easily when exposed to air, when exposed to environment. तो ऐसे substances non-volatile substances है. तो कोई भी solid substances है वो easily evaporate नहीं होते, तो they are non-volatile. ठीक है, तो कोई भी solid substances का आप example यहाँ पे ले सकते हैं. ठीक है, understood? Okay, Nirav. What about you, Swapnil? You got this? Okay. So which three methods we learned? Please list it out here in comment box, everyone. Which three methods did we learn? Yes, I'm waiting. Yes, right, Nero. Which method we learned, Priyanshu? What was the third one? Separation. Evaporation, centrifugation and separation. Okay? So please keep these methods in mind कि कौन सी method क्या है और कब हम उसको यूज करते हैं. जैसे कि evaporation हम ऐसे substances के लिए यूज करते हैं जहाँ पे substances volatile है, आसानी से evaporate हो सके ऐसे substances. अगर ऐसे तो substances mixed है तो हम उनको separate करेंगे. When volatile and non-volatile substances are mixed together, we use evaporation, right? Centrifugation. When substances are mixed together and they can be separated based on their density differences, then centrifugation can be used. And when this density differences is not working, right, we cannot separate them by filtration method, right, we use separation technique, right, means kind of immiscible liquids are there, right, जैसे कि oil and water. So we cannot separate oil and water by centrifugation or evaporation, because if we try to heat it, that will burn. Right? If we try to centrifuge it, it will not work. So we need to use separation technique. So layer wise separation is done in case of separation technique. Okay? Now let's move toward the next point if anyone is not having query in previous points. Are you having any? Students? Okay, Ruchi. So let us consider next point in chapter. After centrifugation and separation, the next technique is how can we separate a mixture of salt and ammonium chloride. So students, here salt is kind of non-volatile substance. हमने आगे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि पानी और सॉल्ट का मिक्सचर है, तो पानी कैसे evaporate होकर के salt को बाकी बचाए रखेगा. So we can separate salt and water. Okay, but salt and ammonium chloride है तो आप कैसे separate करोगे? ठीक है, ammonium chloride कोई water तो है नहीं,
So now another method that we are going to learn is how to separate salt and ammonium chloride. So we learned in chapter 1 that ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state. और इस change को हम क्या बोलते हैं? Whenever any solid substance is turned to gaseous state directly, without changing into liquid state. What that method is called? Sublimation जैसा कुछ याद है सबको? ठीक है, तो ऐसे sublimable substances होते हैं जिनका sublimation होता है, तो such substances are called sublimable substance, okay, and volatile components. तो ammonium chloride है, वो volatile component तो है ही, but highly volatile, sublime component है. Sublime मतलब कि सीधा वो gaseous पाउडर फॉर्म में है, उसमें से सीधा gaseous फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड में चेंज होगा ही नहीं. जनरली हमारे पास बर्फ है तो वो पहले पानी बनेगा, फिर वो वाटर वेपर बनेगा, पर ये अमोनियम क्लोराइड ऐसा कंपोनेंट है कि पहले वो सॉलिड से अमोनियम क्लोराइड सीधा सॉलिड से गैसियस हो जाएगा, जबकि बाकी सॉलिड सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैसियस. ठीक है, बट अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेट सब्सटेंस एंड सो it directly changes into gaseous substance. So sublimation process is used here, and some example of solids which are sublime are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthraquinone. इनको हाईलाइट करिए स्टूडेंट. यहाँ पे लास्ट लाइन जो है फर्स्ट पैराग्राफ की, ठीक है, मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखा रही हूँ. यू ऑल्सो हाईलाइट इट. सिलेक्ट हो पाए तो मैं बता रही हूँ, बाकी यहाँ सम एग्जाम्पल से लेकर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है वहां तक. These are example of solids which are sublime, means which turns directly into gaseous state from the solid. And examples are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthracene. Okay, which turns from solid to gaseous state directly without changing into liquid state. वो solid से सीधे gaseous state में चले जाएंगे. Okay? आई होप कि सबने हाईलाइट कर लिया है. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस का सेपरेशन कैसे होगा? अगर ये सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में ही चले जा रहे हैं तो हमारे पास वो सब्सटेंस है वो कैसे सेपरेट कर पाएंगे? तो गैसियस सब्सटेंस हवा में उड़ जाएगा और बाकी बचेगा वो दूसरा सब्सटेंस है. और सपोज हमें अमोनियम क्लोराइड को भी कहीं अलग रखना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको एक सेटअप दिया गया है कि भाई जो स्टैंड है नीचे बंसन बर्नर सेट करेंगे, ठीक है, और ट्राइपॉड मेश के ऊपर हम अपना जो सब्लाइम सब्सटेंस है उसको किसी ग्लास वॉच ग्लास में रखेंगे. तो चाइना डिश के अंदर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है, ठीक है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट फनेल रखी हुई है, आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर कॉटन प्लग से उसको बंद किया है. वाह, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस कॉटन प्लग स्टूडेंट? वी नो दैट अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट मींस टर्न्स इनटू गैसियस स्टेट, तो वो तो उड़ जाएगा. गैसियस सब्सटेंस क्या होता है? हवा में खुला छोड़ो तो हवा में उड़ जाता है. तो ऐसा ना हो इसलिए उसको कंटेन करने के लिए हमने कॉटन प्लग लगाया है. अब जैसे ही हीटिंग शुरू होगा तो सॉल्ट तो सॉल्ट उसी में रहेगा, बट अमोनियम क्लोराइड जितना है वो ऊपर वेपर बन के कलेक्ट होगा, है ना? हाँ, फनेल में ऊपर की ओर कलेक्ट होगा. तो इस तरह से सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को हम सेपरेट कर पाएंगे. तो ऐसे जो हाईली वोलेटाइल से सब्लाइम सब्सटेंसेस है और सॉलिड सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, उनको अलग करने के लिए सब्लिमेशन टेक्निक यूज होती है. तो इस टेक्निक का नाम क्या है स्टूडेंट? सब्लिमेशन टेक्निक. So we can separate these substances by using sublimation method. Okay? I hope कि सबके लिए sublimation technique clear है. Is it clear for everyone? Students, सबके लिए clear है? Yes or no? Good. What about others? Okay. Ansh, Chris, Ved, Rensi, Radhe, Maulik, Neha, Darshi. Everyone please do reply when you are in class so that I can know that you understood the point. Okay? Okay. Fine.
ओके, सो नो क्वेरीज इन सब्लिमेशन मेथड, राइट, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आप सब्लिमेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसको यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हाईली सब्लाइम होते हैं वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स हो जिनका सब्लिमेशन नहीं होता, तो इनको आप सब्लिमेशन के थ्रू अलग कर सकते हो, क्योंकि दूसरा सब्सटेंस तो सब्लिमेट होगा नहीं, एक हो जाएगा तो बाकी बचेगा वो आपका सब्सटेंस, मतलब सेपरेट हो गया। ओके, तो थर्ड पॉइंट, दैट इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? आपके पास जो डाइंग कंपोनेंट है जो आपने आगे इंक से सेपरेट किया था, क्या वो एक सिंगल कलर है, आपको दिख रहा है ब्लू है या ब्लैक है, तो क्या वो अकेला एक ही कलर से बना हुआ है? वेल एक्चुअली नहीं होता, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि दो अलग अलग कलर से ये डाई कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। सो फॉर दैट वी कैन यूज दिस फिल्टर पेपर टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे एक थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेना है, जो लैब में हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं कुछ लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो दैट फिल्टर पेपर, इट्स थिन स्ट्रिप वी हैव टू टेक and draw a line on it using a pencil approximately 3 cm above the lower edge. Lower edge से 3 cm ऊपर एक लाइन खींचनी है। आपको यहाँ पे फर्स्ट इमेज में दिखाया गया, यू कैन सी हियर, एक फिल्टर पेपर लिया और उसके 3 सेंटीमीटर ऊपर एक हमने लाइन लगा दी पेंसिल से, ठीक है, और उसी लाइन के ऊपर एक इंक का क्रॉस बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप लोग? Put a small drop of ink, water soluble ink यूज करनी है, ठीक है, from a sketch pen or fountain pen at the center of the line and let it dry. अब ड्राई हो जाए उसके बाद उस फिल्टर पेपर को जहां आपने लाइन बनाई वो नीचे वाला हिस्सा ग्लास के अंदर आपको इमर्ज करना है, डुबाना है उसमें। So lower the filter paper into jar और ग्लास और बीकर और टेस्ट ट्यूब जो भी आपने लिया, ठीक है, उसके अंदर आपको एंटर करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो जार ली है उसके अंदर फिल्टर पेपर ऐड किया, ठीक है, ग्लास रोड के साथ उस फिल्टर पेपर को बांध दिया। आप देख सकते हो ऊपर ये जो है ये ग्लास रोड है, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ आप देख सकते हो ये ग्लास रोड है, ठीक है, लेबल किया, और उसके साथ इस फिल्टर पेपर को टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है पेपर क्लिप के थ्रू, ताकि वो नीचे ना गिर जाए, और उस ग्लास रोड के थ्रू स्टैंड करवाया। तो इस फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप है नीचे हमने पेंसिल से लाइन बनाई थी और एक इंक का स्पॉट बनाया था। अब पानी में कुछ देर रहने के बाद क्या होगा, उसे पानी के अंदर डुबोया है तो इंक है उससे डाइंग कंपोनेंट सेपरेट होने लगेंगे, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल इंक पानी में चली जाएगी क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है, और डाई के अंदर दूसरा कोई कंपोनेंट है, दूसरा कोई कलर है, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर है फिल्टर पेपर के अंदर, वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेस ऑन इट? डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन फिल्टर पेपर स्ट्रिप? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीजन ऑफ राइज ऑफ द कलर स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप? तो पेपर स्ट्रिप को डुबोया है, ठीक है, पूरा नहीं, नीचे से उसकी एज को डुबोया है, लाइन बनाई है, जहाँ स्पॉट बना है उसके नीचे वाला हिस्सा। तो धीरे धीरे फिल्टर पेपर पानी अब्जॉर्ब करेगा, पानी धीरे धीरे उसमें ऊपर चढ़ेगा, तो जैसे ही वो इंक की ओर पहुंचेगा तो पानी इंक के अंदर एक से ज्यादा कलर है उनको अलग करेगा, उनके जो डाइंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरह से फिल्टर पेपर टेक्निक बोलते हैं, इससे हम उनको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे इस एक्टिविटी का कंक्लूजन दिया है, द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड डाई इज सॉल्युबल इन इट, and as the water rises on filter paper it takes along with the dye particles, and usually dye is a mixture of 2 or more colors। आप जो भी बॉल पॉइंट पेन यूज करते हो डेली बुक्स लिखने के लिए, तो ये पेन में भी एक कलर की इंक नहीं होती, आपको लगता है कि ये सिर्फ ब्लू है या डार्क ब्लैक कलर है, पर एक्चुअली वो एक से ज्यादा रंगों का मिश्रण है, ठीक है। So that colors can be separately seen by the filter paper technique, right? तो जो ज्यादा soluble है वाटर में वो जल्दी ऊपर की ओर राइज होगा उस फिल्टर पेपर पर, और जो कम soluble है वो नीचे दिखेगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंक में एक से ज्यादा कलर्स है। So you can see those colors with the different levels on filter paper. Okay? So filter paper technique helps to separate color in a dye. ओके, तो यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस है, उसको कहाँ यूज किया जाता है वो बताया गया है।
तो ये जो फिल्टर पेपर टेक्निक है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इसका एक्चुअल नेम इस मेथड का क्या है? क्रोमेटोग्राफी। प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी is a technique to separate dyeing components in ink, okay? तो क्रोमा हम सबने सुना है, ठीक है? क्रोमा टेक्निक कभी थिएटर्स में भी यूज करते हैं, क्रोमा कट करके, ठीक है? तो वहां भी ये कलर कंपोनेंट यूज करते हैं, हालांकि वो डिजिटल प्रोसेस है, ठीक है? बाकी जो जनरली डाइंग कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज की जाती है। दिस वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, so it was given the name chromatography because chroma means color. So it is technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. और उसी solvent में अगर वो dissolve हो जाते हैं तो ऐसे solute, जैसे color component को अलग करने के लिए chromatography का use होता है। Now with the advancement in technology, newer technique of chromatography have been developed. बहुत सारी नई टेक्निक्स अवेलेबल है, ठीक है? यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। राइट नाउ वी नीड टू लर्न दैट क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट व्हिच आर soluble in that same solvent. Okay? Now application of chromatography are to separate colors in a dye, pigments from natural colors and drugs from blood. कई बार ब्लड में जो ड्रग्स है उनको सेपरेट करके चेक किया जाता है। जैसे आपने पता होगा कि ये जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, कई बार इनका डोपिंग टेस्ट होता है ना? डोपिंग टेस्ट पता है ना? कितनों को पता है डोपिंग टेस्ट के बारे में? डोपिंग टेस्ट के बारे में आप में से कितनों को पता है स्टूडेंट्स? ओके, अगर नहीं पता तो सुनिए। डोपिंग टेस्ट एथलीट्स जो प्लेयर्स होते हैं उनका होता है कि अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो उनके ब्लड में वो ड्रग्स पाए जाएंगे। तो यहाँ हमने जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक देखी उसका यूज करके ब्लड से अगर ड्रग्स उसमें मिले हुए हैं तो वो वहाँ सेपरेटली देखे जाएंगे। So by use of chromatography, they find out that if they are having drugs in blood, okay, तो ये टेक्निक की हेल्प से उनको पता लग जाएगा। Pigments from natural colors, natural colors जो अवेलेबल है, जैसे कुछ वेजिटेबल्स है, कुछ फ्रूट्स है, उनसे डार्क कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये कलर्स भी हम कहीं डाइंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे बीटरूट का कलर आपने देखा होगा, एकदम डार्क पर्पल कलर है। तो ऐसे नेचुरल कलर है, उनसे अगर हमें वो पर्पल पिगमेंट चाहिए, ठीक है, कि वो अलग अलग जगहों पे फिर एज अ पिगमेंट यूज हो सकता है, तो उनको अलग करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूजफुल है, ठीक है? और डाई में भी जो कलर्स है उनको यूज करने के लिए यूज किया जाता है। सो टुडे वी लर्न हाउ मेनी टेक्निक्स स्टूडेंट्स? टुडे वी लर्न इवेपोरेशन, centrifugation, separation and chromatography, and which are another technique we learned? Sublimation. Okay, so 5 techniques we learned today students. You need to write about these techniques in today's homework. Okay, write in your short about these particular techniques and their application. आपको बेसिकली लिखना है कि हम ये टेक्निक क्यों यूज करते हैं। एक्टिविटी को स्किप करके टेक्स्ट बुक से जितनी इंफॉर्मेशन है इन 5 टेक्निक के बारे में, FND में उनके बारे में शॉर्ट नोट लिखनी है, ठीक है? कौन सी 5 टेक्निक? इवेपोरेशन, सेपरेशन, देन क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन एंड सेपरेशन टेक्निक, जो सेपरेटिंग फनेल यूज किया था, ठीक है? सो दीज 5 टेक्निक यू राइट अबाउट दिस टेक्निक, देयर यूज, ओके, in your FND. That is your homework for today. And here I am resting my class. Remaining points, how many points are remaining? That would be done in next class. So next class में आपका chapter finish हो जाएगा. Okay? Okay everyone, have a nice day. I'll see you in next class and probably the last class. Okay?